खबर हिंदी डिजिटल दे नाल जुड़े साडे सारे ही दर्शकों का मेरे यानी कि सिमरत दे वल्लों निघा स्वागत। खबरां दे इस खास बुलेटिन की शुरुआत करदे हां कुछ खास खबरां दे नाल। चंडीगढ़ दे सैक्टर 11 दे विच दुकान नंबर 14 दे नेड़े उस वेले सनसनी फैल गई जदों पूरा इलाका गोलीबारी की आवाज़ दे नाल डर गया। गोलीबारी विच एक व्यक्ति गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया, उसनूं तुरंत हस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलदियां सार ही सीनियर पुलिस अधिकारी ते वड्डी जिहड़ी पुलिस फोर्स है मौके ते पहुंच गई, पूरे इलाके नूं घेर लिया गया। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस घटना स्थान तो सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। चश्मदीदा तो पुछगिछ की जा रही है। दिन दिहाड़े वापरी इस घटना ने इलाके दे विच दहशत का माहौल पैदा कर दिता है। स्थानक लोग इस घटना तो घबरा चुके ने, सुरक्षा प्रबंधों के उपर सवाल चुकते पे ने। पुलिस फिलहाल गोलीबारी के पिछे के मकसदों की जांच कर रही है ते दोषियों की पछाण कर ली गई है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू तो जांच की जा रही है ते दोषियों को जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक बड़ा हादसा वापर चुका है। हवाई सेना का जहाज हादसाग्रस्त हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जहाज नूं उतारन तो बाद अग लग गई ते सूत्रों तो पता चलिया है कि यह घटना एयरबेस के अंदर वापरी है। एयरबेस ते फायर ब्रिगेड ते एमरजेंसी टीमां मौके ते पहुंच चुकियां ने। अग दे उपर काबू पाउण दीयां कोशिशां कीतियां जा रहीआं ने। दस्सिया जा रहा है कि जहाज एक नियमित उड़ान ते सी। सूत्रों तो पता चलता है कि एयरबेस ते उतरदे समय जहाज विच धमाका होया ते फिर अग लग गई। चालक दल ते होर कर्मचारियों की स्थिति बारे अधिकारित जानकारी की उड़ीक है। हवाई सेना ने घटना की जांच शुरू कर दी है ते इस विच 5 भारती जिहड़े सैनिक सन उन्हां दी मौत हो चुकी है, जिस दे चलदे हुण जिहड़ा इस घटना नूं लैके जांच जारी है। ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਗ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਗੱਤਕਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। इस मौके ते सिख आगू शरणजीत सिंह सरा ने जिक्र किया है कि काफ़ी देर तो असीं देख रहे हैं कि कई गुरु घर की हदूद के अंदर योगशाला चल रही है, जिथे गुरु साहिब की मर्यादा भंग होंदी है, क्योंकि कई लोग इत्थे नंगे सिर पहुँच रहे हैं। सिख सिद्धांतां के अनुसार सही नहीं जापदा। उन्होंने कहा है कि साडी वल्लों बेनती की गई है, जो भी गुरु घर के अंदर योग क्लासां लग रही ने वो कमेटियां इस गल का खंडन करन, योग ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2-3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ 'ਤੇ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਓ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਜ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਛ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ, SIT ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ 328 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ TV ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਓਹਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਮੁਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਬਾਣੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਦੀ ਬਾਣੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SIT ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੱਕੜ ਕਿਉਂ ਨੇ ਉਹ, ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖੁਦ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SIT ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਆਪਣੇ SIT ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 10,34,000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2024 ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 35,25,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 10,487 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 23,261 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਨਵੇ ਨੂੰ ਕੈਟ 3 ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ 3658 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਰਨਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 14 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਲੈਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ 8 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ 500 रुपये ਦਾ जुर्माना लगाया जाता है। एंड सभी को सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत है अमृतसर एयरपोर्ट पे। देखिए, हम आज आप लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं कि अमृतसर एयरपोर्ट पे हम यात्री सुविधा दिवस जो हमारा 15 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। इसके अलावा हम ये भी आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि अमृतसर एयरपोर्ट पे पिछले 12 सालों में हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐड ऑन की हैं, पैसेंजर के लिए हमने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, उसके बारे में भी हम आपसे आज बात करेंगे। और ये हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं ये हमारे जो एक्सट्रीम पैसेंजर्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं और जो यहाँ से यात्रा करते हैं अमृतसर एयरपोर्ट से, उन सब लोगों की जानकारी में भी ये हों। तो आप जानते ही हैं कि जैसे हमारी ग्रोथ की जो पॉइंट्स हैं, अमृतसर एयरपोर्ट पे पहले जो 10.34 जो हमने लैक्स पैसेंजर्स लगभग ट्रैवल करते थे, अभी 3.5 टाइम्स पैसेंजर्स हम ट्रैवल किए हैं। 24-25 में 35 लैक्स तक हमारा आंकड़ा पहुंचा है, जो पहले 10 लैक्स था। उसके अलावा एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी हमारे काफ़ी बड़े हैं, वो हमारे लगभग 2.3 टाइम्स हुए हैं। पहले हमारा लगभग 10,500 थे, जो अभी हमारे 23,300 के आसपास पहुँचे हैं। इसके अलावा जो आप जानते ही होंगे कि अमृतसर एयरपोर्ट जो हमारे नॉर्दर्न जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें बहुत ही लीडिंग एयरपोर्ट है और बहुत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, और बॉर्डर एयरपोर्ट होने के कारण इनका सामरिक महत्व भी है और इनकी अपनी जो एक तरीके से सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि हमने कैटेगरी 3 जो है अपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है और ये 2017 में किया है। इसके अलावा हमारे पास पहले पार्किंग बे जो थे वो 15 थे, एंड हमने अभी 25 बेज उसमें ऐड किए हैं जो हमने 22 में किए हैं, और अभी हमारे पास टोटल 25 पार्किंग बेज हैं। इसके अलावा हमने जो अपने काउंटर्स हैं उनको भी हमने ऐड ऑन किया है, एंड पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण यहाँ पे किया गया है जो हमने 2023 में कमीशन किया। टर्मिनल का मॉडर्नाइजेशन भी किया है जिसमें हमने टर्मिनल में अपने वाशरूम्स ऐड किए हैं। फर्स्ट फ्लोर जो इंटरनेशनल का है उसको ऐड किया है। हमारे जो वाशरूम्स, हमारा जो पैसेंजर्स का जो मूवमेंट एरिया है, हमारा जो फ्लोरिंग एरिया है, उनको सबको हमने ऐड ऑन किया है। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड हमारी जो कार्गो की टर्मिनल बिल्डिंग है उसको भी हमने डोमेस्टिक कार्गो को भी इंक्लूड किया है। एआई का और बीसीएस का ऑफिस भी हम लोगों ने 22015 जो आप देखते हैं कि वेलकम गेट के पास में बना हुआ है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो भी एज ऑन डेट हमारे पास अमृतसर एयरपोर्ट से लगभग 9 डोमेस्टिक जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट होती हैं और 8 इंटरनेशनल फ्लाइट हो रही हैं। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है सिटी वाइज, हम बॉम्बे, दिल्ली, श्रीनगर, बेंगलोर, अहमदाबाद और हमारा जो कुल्लू, हैदराबाद, कलकत्ता और पुणे को कनेक्ट करते हैं। वेयर एज हम जो अपना इंटरनेशनल जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें हम हीथ्रो, बर्मिंघम, दुबई, शारजाह, दोहा, कुआलालंपुर, सिंगापुर और बैंकॉक को कनेक्ट करते हैं। जो हमारी जो सर्विंग जो एयरलाइंस हैं उसमें हमारी एयर इंडिया है, इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, कतर एयरवेज, मलेशियन एयरलाइंस, बाटिक, थाईलाइन एंड स्कूट हमारे यहाँ ऑपरेट किए हैं। जो कार्गो भी हमने काफ़ी इंक्रीज़ किया है। कार्गो हमारा लगभग 30% इंक्रीज़ हुआ है पिछले दिनों से, जो हम पहले अभी लगभग 3600 मीट्रिक टन के आसपास किया है। इसके अलावा जो हमारे जो गुड्स हैं जो हम ट्रांसपोर्ट किए हैं उसमें हमारे स्पोर्ट्स के गुड्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, गारमेंट्स करते हैं हम लोग जो एक्सपोर्ट, एंड मेडिसिन हमारे यहाँ से जो एक्सपोर्ट होती हैं, इंजीनियरिंग गुड्स एंड मशीन पार्ट्स और पेरिसेबल आइटम्स लाइक हमारा जो बेबी कॉर्न्स हैं, मैंगोज हैं और बहुत सारी ग्रीन चिली हैं। काफ़ी आइटम्स हमारे जो फार्मर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अमृतसर एयरपोर्ट से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पैसेंजर जो सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं उसमें हमने आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि अभी डिगी यात्रा हमने जो 2026 में ही शुरू की है। फ्लाइब्रेरी के लिए भी आप लोगों को हमने इन्फॉर्म किया था
जिसमें हम बुक्स पैसेंजर्स के लिए रखते हैं। लाइब्रेरी का भी हमने किड्स प्ले जोन, जो छोटे बच्चे हैं उनको हम एंगेज कर सकें और उनको हैसल फ्री उनके पेरेंट्स को यात्रा कर सकें। उड़ान यात्री कैफ़े, जिसमें हम बहुत ही चीप रेट पे, जो हमारा पूरे देश का आम नागरिक वाली धारणा के तहत हमने उनके लिए सस्ता जो खाना है, जो 5 हमारे आर्टिकल्स हैं खाने के, वो हमने उड़ान यात्री कैफ़े में रखे हैं। इन सभी का इनॉग्रेशन माननीय मंत्री जी के द्वारा 29 मार्च 2026 को किया गया था। इनलाइन एक्सरे बैगेज का भी हमने, जो हमारी स्टैंड अलोन मशीन थी, उनको हमने अभी रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है वहाँ से, और अभी हमारा इनलाइन एक्सरे बैगेज पैसेंजर्स के करवा सकते हैं। सीधे चेक इन काउंटर पे जाना होता है पैसेंजर्स को, अपना बैगेज चेक इन काउंटर पे रखें और वो उनकी जो स्क्रीनिंग है वो पीछे इन लाइन में ही हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा थी। इसके अलावा हमने एडिशनल चेक इन काउंटर्स भी, जो पहले 15 होते थे, उसको हमने 33 तक किया है, लगभग डबल से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी की है, सो दैट पैसेंजर्स और एयरलाइंस जो हैं वो उनका फ़ायदा उठा सके और हैसल फ्री उनकी मूवमेंट हो। टूरिज्म और पिलग्रिम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे कि जो अमृतसर एयरपोर्ट है, दैट इज़ गेटवे टू दी, अपना अमृतसर एयरपोर्ट के साथ साथ रीजन के साथ साथ नॉर्थ इंडिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ साथ यहाँ पे गोल्डन टेम्पल के लिए बहुत सारे हमारे जो पिलग्रिम्स हैं वो अमृतसर एयरपोर्ट पे आते हैं। जलियांवाला बाग का हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए, दुर्गाना टेम्पल और जो बाघा बॉर्डर हैं उसके लिए लोगों में काफ़ी अट्रैक्शन रहता है और वो सब लोग अमृतसर एयरपोर्ट से यात्रा करते हैं। जो की एयरपोर्ट हैं वो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, और जो ग्लोबल, जो पंजाबी, जो सिख पासपोर्ट होल्डर्स हैं, डायस्पोरा, वे लोग हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमको अमृतसर एयरपोर्ट ने जो अपना एक मुकाम हासिल किया है, उसमें हमने एशिया पैसिफिक बेस्ट एयरपोर्ट जो हुआ था हमारा 2 to 5 मिलियन में, 2020 में हमें बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो सुगम है, जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है, हमने ग्रीन एनर्जी के लिए भी 483 किलोवाट जो सोलर पावर है उसको अपने एयरपोर्ट पे लगाया है, जिससे कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते ही हैं और उसके साथ साथ अपना ग्रीन एनर्जी का जो हमारा संकल्प है भारत सरकार का और इंटरनेशनल लेवल पे कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, उसमें हमको हेल्प मिलती है। उसके साथ साथ हम अपनी जितनी भी ट्रेडिशनल जो लाइट्स हैं उनको हम एलईडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इवन देन हमारा जो रनवे का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी हम एलईडी लाइट उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी सीएसआर में हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स किए हैं। आप जानते ही हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो कॉरपोरेट स्पॉन्सर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने 2020 में जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट किया था गवर्नमेंट स्कूल राजासांसी में, उसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अमृतसर में 18-19 में किया है। फूड रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है कोविड-19 के तहत 2021 में, और स्कूल में जो कंस्ट्रक्शन, जो वॉशरूम का जो कंस्ट्रक्शन स्कूल्स में वो भी करवाए हैं। ये हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम का एक पार्ट के तहत हम अपनी जिम्मेदारियां अपने समाज के लिए और अपने आसपास में जो सिविलियन है उनके लिए निभाते हुए आए हैं। इसके अलावा मेजर इवेंट्स और ऑपरेशंस भी काफ़ी हुए हैं यहाँ पे, जैसे G20 2024 में G20 का यहाँ पे फैसिलिटेशन हुआ था। 358th जो बर्थ एनिवर्सरी जो गुरु गोविंद सिंह साहब की मनाई गई थी 2017 में, और 558th जो बर्थ एनिवर्सरी श्री गुरु नानक देव साहब की मनाई गई थी वो 2019 में। काफ़ी बड़े पर्व थे अमृतसर के लिए और हमारे पूरे इसके लिए, जिसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया से एंड एब्रोड से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं। यहाँ पे रेगुलर हैंडलिंग हम VIP 1, 2, 3 और बाकी हमारे जो एक्सट्रीम पैसेंजर्स हैं उनको हम करते हुए आए हैं। पब्लिक सर्विस ड्यूरिंग इमरजेंसीज भी हमने काफ़ी किए हैं। जैसे आप देखेंगे कि कोविड-19 में रीपैट्रिएशन फ्लाइट चलाई गई और 16,700 जो ब्रिटिश और कनेडियन सिटीजन्स थे उनको इवैक्यूएट किया गया। मेडिसिन फ्लाइट भी यहाँ पे हमारे पास ऑपरेट हुई, और जो फेज़ 1, फेज़ 2 कई मैनी फेजेस में हमने काफ़ी जो रीपैट्रिएशन फ्लाइट्स के तहत लगभग 2.3 मिलियन पैसेंजर्स को 20 से लेकर 22 तक कोविड टाइम के दौरान उनको हमने यहाँ पे फैसिलिटेट किया है। तो और सक्सेसफुली ऑपरेशन आप देखेंगे कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें एयरपोर्ट बंद भी हुआ, बट काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी हम एयरलाइंस सब मिलके एयरपोर्ट को संचालन बड़ी फास्ट तरीके से किया था और हम ऑपरेट करते रहे हैं। हमारा जो कोर मैसेज है, ओवर द लास्ट 12 years एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनटू ए मॉडर्न अवार्ड विनिंग इंटरनेशनल गेटवे विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, enhanced connectivity, strong passenger growth, improved cargo capabilities, and passenger-centric facilities, making it a key drive of tourism, pilgrimage,
एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पंजाब। आपको ये हम बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमने 12 साल की उपलब्धियां बताई और उसी के तहत हम जो यात्री सेवा दिवस हम मनाने जा रहे हैं उसमें हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। उन एक्टिविटीज़ के बारे में 15 तारीख को सुबह सबसे पहले जो हमारा जो प्रोग्राम रहेगा यात्री सुविधा दिवस में, वो हम यहाँ पे वेलकम करेंगे पैसेंजर्स का, जो टीका उनको लगाएंगे, उनको चॉकलेट और सोनियर और गिफ्ट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी हमारे वेलकम पैसेंजर रहेंगे। उसके अलावा हमारा कल्चरल प्रोग्राम अराइवल और डिपार्चर में रहेगा, सो दैट लोकल जो थीम है पैसेंजर्स, लोकल यहाँ का जो डांस है, जो हमारी हेरिटेज हैं, उनको हम शोकेस कर सकें। ट्री प्लांटेशन ड्राइव भी हम यहाँ पर ड्राइव चलाएंगे जिसमें हमारे सभी CISF, कस्टम, इमिग्रेशन, लोकल पुलिस, हमारे स्टेक होल्डर, सारी एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलर्स, सभी लोग हमारे साथ जो हैं वो जुड़ेंगे उसमें। पैसेंजर्स फीडबैक जो हमारा कलेक्शन है उन यात्री कैफ़े, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। फिर हम एक थीम ये रखे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम के तहत हम लोग सैपलिंग्स हम ये रखेंगे यहाँ पे, सो दैट अराइवल में हम पैसेंजर्स को सैपलिंग दें। और चूंकि अभी रेनी सीजन आने वाला है और चल भी रहा है, तो वो पौधे जो हैं हम अपने जहाँ भी सुटेबल प्लेस में वो लगा सकें उनको। जो सेल्फी बूथ्स हैं पैसेंजर्स के लिए, वो भी हम क्रिएट करेंगे अराइवल और डिपार्चर में, सो दैट पैसेंजर्स उनके साथ सेल्फी लेके अपने आप को गौरवान्वित भी फील करें। और जो यात्री सुविधा दिवस का हमारा जो संकल्प है उसमें वो हमारे साथ जो है निभाएं। एक मेडिकल चेकअप कैंप हम करवाएंगे जिसमें हमारा शुगर, BMI, उनके ब्लड प्रेशर्स वगैरह देखेंगे। आई चेकअप कैंप हम ड्राइवर्स के लिए जो है ना वो लगा रहे हैं, जो हमारा कम्युनिटी सेंटर में होगा। और एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। तो मेडिकल से रिलेटेड हमारी तीनों एक्टिविटी ऑपरेट होने वाली हैं। उसके अलावा हम फैसिलिटेट करेंगे जो हमारे हाउसकीपिंग पैसेंजर जो अपने पर्सन्स हैं, क्योंकि हाउसकीपिंग हमारा पर्सन्स ये है कि वो हमें सेवाएं देते हैं सब लोग, बट हम उनको रिकग्निशन उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि उनका रिकग्निशन प्रॉपर हो। फैसिलिटेशन ऑफ दी वुमेन एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे वुमेन मैन पावर के तहत हमारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, CISF से हैं, इमिग्रेशन हैं, कस्टम हैं, जो हमारे साथ एयरलाइंस के लोग हैं, ग्राउंड हैंडलर्स हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग हैं, सभी लोगों की जो वुमेन मैन पावर हैं उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर दिवस के ऊपर। वंदे मातरम का जो सिंगिंग प्रोग्राम होगा ये हम पूरा अपने डिपार्चर हॉल में रखेंगे जिसमें सभी लोग मास लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा वंदे मातरम प्रोग्राम बीच बीच में पैसेंजर्स के पार्टिसिपेशन से भी हम करते जाएंगे। एजुकेशनल विजिट भी हम लोगों ने रखी हैं और कैरियर गाइडेंस का भी हम प्रोग्राम रखे हैं। जो हमारे फ्रैंकफिन स्टूडेंट्स हैं, जो एयर होस्टेस वगैरह या जो ये सब कोर्सेज जो चलाते हैं स्कूल्स वाले, उनके बच्चे हमारे साथ रहेंगे और हम उनको कैरियर गाइडेंस के बारे में बताएंगे और सो दैट वो अपना फ्यूचर अपना सेव कर सकें। इसके अलावा एक ड्राइंग कंपटीशन बच्चों के लिए जो हम उसमें रखेंगे, जहां हमारा प्ले जोन है एरिया SHA के में। देन पैसेंजर फैसिलिटेशन एंड इंटरेक्शन एक्टिविटीज़ भी हम उसमें चलाएंगे टर्मिनल के अंदर। और हम चाहेंगे कि उस दिन हमारे रेडियो जॉकी भी अपना लाइव यहाँ से प्रसारण कर सकें, यात्रियों से बात कर सकें। और एक तरीके से फिर एट द एंड ऑफ द डे हम एक मीडिया ब्रीफिंग रखेंगे कि हमने सारे प्रोग्राम्स हमारे सब अच्छे से यात्री सुविधा दिवस जो हमारा एक सपना है, जो हम एक यात्रियों को कैसे हम सुविधा दे सकते हैं, उसके बारे में हम फिर डीब्रीफिंग भी आप लोगों के साथ रखेंगे। तो मैं सभी लोगों से आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सब बढ़ चढ़कर इस जो उत्सव है यात्री सुविधा दिवस जो हम मना रहे हैं, इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी हमको कवरेज के साथ साथ जो है और पैसेंजर्स तक, अपने आम आदमी तक ये चीज़ें पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। 15 जून मनाया जा रहा है। 15 जून जी जी जी। तो पार्किंग एरिया में अगर 5 मिनट कोई अपनी कार पार्क करता है, किसी को डिपार्चर या अराइवल करने आता है, तो उसमें पैसे की वजह उनसे कोई कह रहा है कि हमारे पास 500 तक दे रहे हैं, हमको 600 ले लिए 10 मिनट भरने के, तो क्या सर फिर उसका सोल्यूशन क्या है सर? उसका मैं बताता हूँ सर। हमारा कार पार्किंग एरिया सर जो गोल चक्कर है ना, उसके राइट साइड में है, पीछे पार्किंग वहाँ पे है। ये पैसेंजर्स को छोड़ने और लाने के लिए सिर्फ है। यहाँ पे 8 मिनट से ज़्यादा अलाउड नहीं है सर। फिर भी लोग आके पार्क करते हैं, खड़े रहते हैं, तो उनके लिए एक फ़ाइन की सुविधा की गई है कि अगर कोई जाके ऐसे खड़ा होगा तो उसको आपको 500 रुपये फ़ाइन है, वो लीगली है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी कुछ लोगों को यह सुविधा होती है कि भाई रूल भी तोड़ना है और फिर ये भी करना है। तो हम इसमें हम अभी अपने बिल्डिंग के सामने लेनिंग सिस्टम भी क्रिएट करवा रहे हैं
सो दैट जो आप देखेंगे कि यहाँ 4-5 लेन हो जाएंगे, डिवाइडर वगैरह भी बने होंगे, तो एक रेगुलराइज हो जाएगा। बट वो जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पता नहीं होता। पार्किंग ये नहीं है सर हमारी, ये पिक एंड जोन लेन है। पार्किंग 100 मीटर तक बिल्डिंग के नहीं हो सकती। कभी पहले जब बिल्डिंग बनी थी तो ये पार्किंग होती थी, बट बीसीएस का रूल आने के बाद में ये हुआ कि 100 मीटर के बाहर पार्किंग बनेगी, तो हमें गोल चक्कर के उधर में पार्किंग करनी पड़ी है। वहां पे आप देखेंगे एक तरफ राइट साइड में हमारी पैसेंजर पार्किंग है और लेफ्ट साइड में हमारी स्टाफ पार्किंग है। तो बट पैसेंजर्स को नहीं पता होता, कई बार वो समझते हैं यही पार्किंग है और वो कहते हैं हमसे ज्यादा पैसे ले लिए। हाँ जी, अवेयरनेस कैसे होगी, कुछ अवेयरनेस तो सर अनाउंसमेंट भी हम अनाउंसमेंट सर हमारी गाड़ी वहाँ अनाउंसमेंट की लगी है सर, वहाँ पे हमने बोर्ड भी लगाए हुए हैं सर, सब कुछ किया हुआ है सर। डेजिग्नेटेड पार्किंग का भी सर वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि डेजिग्नेटेड पार्किंग ये है। तो अब ये चीजें, इससे ज्यादा क्या अवेयर कर सकते हैं। रनवे का जो काम चल रहा है कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ अंदाजा है कि आ जाएगी, काफी स्लो काम चल रहा है। जी जी, स्लो तो नहीं चल रहा है सर। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बिटुमन की शॉर्टेज है अभी। ओवरऑल हमारा पानीपत रिफाइनरी से जो बिटुमन आने वाला था, पहली बात तो हमारा 43,000 था जब हमने काम शुरू किया, बट 28 फरवरी के बाद से 1 अप्रैल को हम काम शुरू कर जो किया हमने, बिटुमन हमको नहीं मिला। 28 फरवरी के बाद में जैसे ये क्राइसिस हुई, उसमें बिटुमन की शॉर्टेज हो गई और 1 अप्रैल को हमारे पास बिटुमन नहीं था। बिटुमन के रेट भी 43,000 से 86 और फिर 93,000 तक पहुंचे हैं। चलो वो एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन एक अलग बात है, बट अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर ये हुआ कि आपको 10 दिन में 1 गाड़ी मिल जाएगी, 2 गाड़ी मिल जाएगी, उससे काम नहीं होने वाला था। आइए सर, आइए आइए प्लीज। तो कुल मिला के स्थिति ये हुई कि बिटुमन की स्केर्सिटी की वजह से हम बिटुमन का काम नहीं कर पाए, बट बाकी काम हमारे चालू हैं। और अभी हम ऊपर में अपने हायर अथॉरिटीज को हमने ये चीज सब बता दी है कि बिटुमन स्केर्सिटी के कारण हम बिटुमन का काम नहीं कर पाए हैं। ये चीजें अभी अंडर कंसिडरेशन चल रही है कि आगे क्या उसमें एक्शन लिया जा सकता है। एरोप्लेन चेक करने की कॉपी है आपके पास, जैसे वो 2-3 मामले आए थे, जैसे वो ब्लास्ट वाला मामला था, उसका कुछ अपडेट किया आपने उसमें कि आप उसको चेक करते हो, या आपके पास कुछ आता है इंजन को लेकर? देखिए, जो एविएशन सेक्टर है ना, उसकी वर्किंग सबसे कॉम्प्लेक्स वर्किंग है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का दायित्व होता है एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और उसको अपडेट रखना। एयरलाइंस का जो कर्तव्य है, वो उसकी ड्यूटी है कि वो पैसेंजर्स को उसकी टिकट बुक करेंगे, उसको एयरपोर्ट पे फैसिलिटेट करेंगे, उसको लाएंगे। किसी व्हील चेयर पैसेंजर है तो उसको व्हील चेयर देंगे, उसको अटेंडेंट देंगे, उसका बोर्डिंग कराएंगे, उसका लगेज चेक इन कराएंगे, सब रजिस्टर्ड कराएंगे। फिर उस लगेज को और पैसेंजर्स को भी बोर्डिंग गेट्स के थ्रू अपने एयरक्राफ्ट तक लेके जाएंगे। और अगर बसेज उनकी अपनी लगाते हैं, जो उनका लगेज है वो उनकी ट्रॉलीज लगी होती है, उनके लोडर्स हैं, सब जाके वो एयरक्राफ्ट में अपलोड करते हैं और एयरक्राफ्ट में पैसेंजर को बढ़ाते हैं। अब एयरक्राफ्ट एयरलाइंस का है और एयरक्राफ्ट की कंप्लीट जिम्मेदारी एयरलाइंस के साथ ही कैरी करती है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, नंबर 1। नंबर 2, एयरक्राफ्ट में हर कोई आदमी जा भी नहीं सकता है, उनका खाली सिक्योरिटी सुपरवाइजर एक जा सकता है, जो अलाउड 1-2 आदमी होता है, या फिर क्रू मेंबर होता है। क्योंकि जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट आता है, आने के बाद उसकी सब जैसे ही डी प्लेनिंग हो जाती है, सारे पैसेंजर डी बोर्ड हो जाते हैं, तो उनका एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर जाकर चेक करके आता है एंटायर, उसको कोई सामान तो नहीं छोड़ गया, कोई कुछ अनवांटेड चीज तो रैप नहीं रहेगी, सो दैट नेक्स्ट बोर्डिंग के पहले वो कंप्लीट चेक करके आता है। वही अथोराइज एक आदमी है। उसके अलावा फिर जब जैसी बोर्डिंग हो जाती है उसके बाद तो सब पैसेंजर फिर, तो इसलिए ये एक थोड़ा सा टिपिकल इशू है। हालांकि उसके बारे में हमने अपनी हायर अथॉरिटीज को और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लिखा है एक कि ये चीजें कुछ डेवलप हुई हैं, तो वो इस बारे में चल रही है सर बातचीत उसमें। जी, देखा गया है कि कई बार डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल फ्लाइट भी इकट्ठे आ जाती हैं, जी, ये देखा गया है। और आपके पास जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसकी कमी है, क्योंकि वो 1,000 बंदा लाइन में लग जाता है और वो उनकी इमिग्रेशन नहीं हो पाती जब वो यहाँ से निकलते हैं, तो उसको कैसे टैकल कर रहे हैं आप? नहीं सर, देखिए इमिग्रेशन के हमारे 10 काउंटर्स हैं और हमारे 4 जो थे वो जो ई वीजा वाले काउंटर्स हैं, तो मैक्सिमम, बट उसमें एक फ्लाइट में अगर हमारे 150 या 250 पैसेंजर्स भी आते हैं तो 10 काउंटर सफिशियंट है। करते रहते हैं ना वहाँ पे फ्लाइट में, उनको बिठा दिया जाता है नहीं कि ऐसे आधा घंटा, ऐसे 1 घंटा वेट करो, नहीं नहीं तो इतना बचा है। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आधा घंटा 1 घंटा कभी नहीं होता। इवन देन एक अभी इमिग्रेशन का सिस्टम एक दिन फेल हुआ था, अराउंड 10:30 हमको बताया गया था, उस दिन 4 फ्लाइट आ गई थी, बट वो भी हमारे 12:20 तक निकल गए थे, जबकि हमने 11:30 को उनको रीस्टार्ट कर पाए थे। तो एक फ्लाइट में मैक्सिमम 40 मिनट्स 50 मिनट्स लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी पैसेंजर्स को 2-2 घंटे या 1-1 घंटा कोई बैठा कर रखता है, ऐसा कभी नहीं हुआ, नेवर। टेक्निकल एरर आ जाता है, जैसे लास्ट वीडियो जो वायरल हो गया, तो उस केस में जो पैसेंजर्स रहते हैं उनका अकोमोडेशन का कुछ साधन बनता है? सर, जिस दिन ये हमें इंसिडेंट हुआ था तो उस दिन हमने वहाँ पे लगभग मोर देन 100 जो पैसेंजर चेयर भी रखवाई थी कि सो दैट जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं या जो चल के आ रहे हैं वो बैठ सकें,
पानी की व्यवस्था हमने वहाँ करवाई थी, बोटल्स वगैरह सब हमने कहीं कहीं पेटियाँ, फिर उसके बाद हमने वाटर डिस्पेंसर भी वहाँ रखवाए थे। और हमने इमीडिएटली फिर ये भी कर दिया था कि इनको कैसे भी बाईपास करके या जैसे भी सिस्टम को चालू करवा दिया था। लोगों में सब थ्योरी थी कि हमें बच्चे साथ में हमें प्रॉपर अकोमोडेशन प्रोवाइड होगी, सफर कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। अकोमोडेशन तो सर अब मान लो 11 साढ़े 11 बजे कोई आया, 12 बजे 12:15 बजे निकल गया पैसेंजर से, तो अकोमोडेशन तो ये एयरलाइंस का ही काम होता है। अगर मान लो किसी की फ्लाइट कैंसिल होती है तो हमने तो इंश्योर किया पिछले दिनों, इवन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी इस चीज को डायरेक्शंस दी हुई है। पहले क्या करती थी ना, थोड़ा एयरलाइंस कोस्ट कटिंग के चक्कर में उनको होटल नहीं देना, खाना नहीं देना, बट अब तो एयरलाइंस को भी क्लियर कट गाइडेंस है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कि अगर किसी की फ्लाइट कैंसिल होती है या डिले होती है तो दे विल सप्लाई दी फूड, दे विल सर्व दी स्नैक्स एंड दे विल प्रोवाइड दी होटल्स एटसेट्रा एवरीथिंग। अभी तो काफी स्ट्रिंजेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से रूल्स। हमारा अमृतसर को काफी पुराना है, पंजाब का सबसे बिगेस्ट एयरपोर्ट, पर अभी तक यहाँ पर नॉन डोमेस्टिक फैसिलिटी है, आज इंटरनेशनल फैसिलिटी, लोगों की मांग है यहाँ पे और भी फैसिलिटी ताकि तो दिल्ली ना जा पाए तो और भी जाना पड़ता है। क्या किया जा रहा है और देखिए हमारे पास अभी जो अमंग द एयरपोर्ट्स इंडिया के सबसे लंबा रनवे है 3658 मीटर, कैटेगरी 3 इक्विप्ड है, जीरो विजिबिलिटी में भी लैंड कर सकता है, RVR 50 चाहिए, अप्रोच सिस्टम है, 25 बेज हमारे पास हैं, एट ए टाइम हम 25 एयरक्राफ्ट अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से PTT हाफ हमारे पास है, रनवे कैपेसिटी हमारी 14 की है, 14 एयरक्राफ्ट पर आवर। बट जो एयरक्राफ्ट की स्केर्सिटी कहीं ना कहीं एयरलाइंस के साथ हैं, जो एयरक्राफ्ट एयरलाइंस के साथ नहीं है, वो पास नहीं है या अभी प्रोसेस में चल रहा है कि वो एक्वायर कर रहे हैं, तो जब तक ये चीज़ें पूरी तरीके से नहीं होंगी तो कनेक्टिविटी का थोड़ा वही डाउट आता है, क्योंकि जब तक एयरलाइंस के पास सफिशिएंट एयरक्राफ्ट नहीं होंगे वो इधर से इधर डाइवर्ट करते रहते हैं रूट वाइज, जहाँ प्रेशर आता है वहाँ लगा देते हैं, वहाँ से विड्रॉ करेंगे और दूसरी जगह ले जाएंगे। एक इशू है, एयरक्राफ्ट की स्केर्सिटी है। सर एज ऑन डेट अभी हमारा कुछ आकाशा से हमारी बातचीत चल रही है? हाँ, नोएडा से भी हमारा जेवर एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हमारी अभी शुरू हो रही है सर। यहाँ से नांदेड़ की अभी नहीं हो पाई सर शुरू, हमने काफ़ी ट्राई भी किया है। जी हमने काफ़ी ट्राई भी कर रहे हैं सर कि नांदेड़ शुरू हो जाए और पटना साहिब की फ्लाइट यहाँ से शुरू हो। गोवा एक कनेक्टिविटी है, चेन्नई कनेक्टिविटी है, काफ़ी चीज़ें। एयरलाइंस देखिए कैपेसिटी वाइज कोई इशू नहीं है सर, अब एयरलाइंस को स्लॉट लेना है सर, तो वो कहने का मतलब है कि संगत कम जाती है वहाँ पे? नहीं, संगत तो पूरी जाती है सर। नहीं 150 के लिए हम नहीं फ्लाइट, नहीं ऐसा नहीं कह सकते सर, संगत तो काफी जाती है सर। आप फ्लाइट चलाएंगे चलेगी सर। हाँ, डिमांड है सर, पहले चली भी है, बट हम फ्लाइट चलाएंगे तब फ्लाइट चलाने का काम सर एयरलाइंस का है और हम तो फैसिलिटेट ही कर सकते हैं, हम कभी मना नहीं कर सकते। हमारे पास कोई भी अगर एयरलाइंस आके कहती है कि मैं 10 फ्लाइट, अभी मेरे पास इंडिगो का फोन आया था कि सर हमको पार्किंग पे चाहिए, मैं दिल्ली में नहीं मिल रही है। कहने सर कितनी दे सकते हो? मैं कहा आपको कितनी चाहिए? कहने सर मैक्सिमम 6 दे दो। मैंने कहा दे दी, कोई बात नहीं, आप अप्लाई कर दो। तो हम तो अकोमोडेट करने को तैयार हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास एक्सेस में है सर। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਆਪ ਲੋਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦਿਪਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਜੋ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਗਾ। ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਬੱਚੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆਗਾ। ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਕਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਅਭਿਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾਗਾ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ CGI ਦਾ, ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਯੂਥ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਕਾਕਰੋਚ ਜੋ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਮੰਗ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਿੰਡ ਛਜਲਵੱਡੀ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਜਿਨੇ ਚਿੱਟੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ 15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਨਿਊਜ਼। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਮੋਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਗ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, NSA ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ RRS ਦਾ ਗੋਲ ਵਰਕਰ ਹੀ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਮਣ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਨੂਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੁਲਿਆ ਆ, BJP ਪਾਰਟੀ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, EVM 4000 EVM ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ EVM 4000 ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ, ਨੋ ਫਰੀडम, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1500 ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣ ਤੰਗ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਹ ਕਾਕਰੋਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗੀ? ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅਭਿਜੀਤ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਕੀਤਾ ਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ FIR ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ, 90% ਯੂਥ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਗਰਮੀ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ AC 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਦੇਣਗੇ ਫੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਕਰੋਚ ਵਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹੁਣ। मेरा नाम कवलजीत सिंह है, मैं अमृतसर से यहीं से लोकल ही हूँ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ? सर मेरा तो वैसे तो कोई है नहीं ऐसा पढ़ने वाला बच्चा, लेकिन ये ऐसा है कि ये मैं आम जो पब्लिक के जो मुद्दे हैं ना उसके लिए आया हूँ, क्योंकि जो आज तक मेन महंगाई है, बेरोजगारी है ना, एजुकेशन की चल रही है ये प्रॉब्लम। तो सर मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो सरकार है ना, अगर हम आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, चलो ठीक है मांगना चाहिए, है ना, वो मौके पर वो हैं तो गुनाहगार हैं। और कारण क्या है केंद्र सरकार के मंत्री? सर केंद्र सर आज इस्तीफा मांगेंगे और दूसरा फिर कोई धर्मेंद्र प्रधान और आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए सर हम सरकार चाहते हैं ईमानदार। और ईमानदार सरकार कहाँ से आएगी? EVM से तो नहीं आएगी, वो जनता की वोट है ना, उससे आएगी। नौजवानों को नौकरी देने की बजाय कांग्रेस के ना कहा सकता कांग्रेस तो कीड़े मकोड़े हमें समझ रहे हैं ना, तभी तो बोला है ना, हमारी कीड़े मकोड़े से तुलना की है उन्होंने। तो चलो ठीक है, हम कीड़े मकोड़े तो कीड़े मकोड़े सही, लेकिन हम ऐसा है कि हम अपना जो हक है वो तो लेकर ही रहेंगे। डिमांड क्या है आपकी? डिमांड सर ये है कि एक तो बेरोजगारी है, ठीक है, और ये अपना जो एजुकेशन के लिए हमें सिस्टम सबको सही होना चाहिए सर। नाम दाऊद है। दाऊद? हाँ जी। ਬਾਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਮਖੂਦੋਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਖੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? CGI ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਸਮਝਦੇ। ਕਾਕਰੋਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਜਸਟ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, दारू ਦੇ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ, ਸੜਕ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਨਾਲੀ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਆ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। एग्जाम लीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पैंदा, जो मर्जी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पैंदा। ट्रेन के एक्सीडेंट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पैंदा। अगर ट्रंप हमला कर देगा, साडा शिप उजड़ जाएगा, लोग मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पैंदा। सिर्फ एक चीज है कि सानू पावर चाहिए है, और जिन्ने कॉकरोचेस है वो सारे इकट्ठे हो के। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੇਨਲੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੀਕ ਦਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਗਏ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ नीट का एग्जाम है वो वाला, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ एग्जाम ਹੋਇਆ ਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 10th ਦਾ CBSE ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਕਰੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਰ, ਪਾਰਟੀ ਤੇ सिस्टम पे लाया। पार्टी में कोई भी बैठे सर, पार्टी च कोई भी बैठे उन्होंने इन्ना पता ही नहीं कि बच्चों बारे सोचना, एक बारे सोचना। साडा देश दुनिया का यंगेस्ट देश है, यंगेस्ट यंग पॉपुलेशन इंडिया दी है पूरे दुनिया के अंदर। मैक्सिमम
ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਿਊਚਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਰੀ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਅਜੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਡਿਪਕੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਖਬਰ ਹਿੰਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।